والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے السلام کے پیارے مانو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ غسل کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے مانو، بغور آپ سماعت فرمائیں انشاءاللہ تعالی علم میں آپ کی اضافہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے مانو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز ہم کو جب پڑھنا ہے، نماز فرض ہے، نماز پڑھنے کے لیے جو شرائط نماز ہے، یعنی کچھ کنڈیشنز ہے نماز کے، ٹھیک؟ نماز ایسے ہی آ کر ہم ایسے ہی نہیں پڑھتے، ظاہر سی بات ہے نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کیا ہوتے ہیں، کنڈیشنز ہوتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں، بابا سے بلند کہیں کیا کہتے ہیں، شرائط، کیا کہتے ہیں، شرائط نماز، یعنی نماز کے کنڈیشنز، ٹھیک؟ کیا کہتے ہیں، شرائط نماز۔ تو سب سے پہلی جو شرائط ہے، شرط ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ ہے طہارت۔ کیا ہے؟ ایسے خاموش نہیں بیٹھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، آپ کو میرے ساتھ بولنا ہے۔ میں جب کہوں بولنا ہے تو آپ زور سے کہیں، کیا کیا ہے؟ پہلی چیز طہارت۔ کیا ہے؟ طہارت۔ مختصر بتاتا ہوں کیونکہ مجھے عنوان دیا گیا ہے غسل کے تعلق سے بتانے کے لیے۔ مختصر آپ کو شرائط نماز بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد غسل کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ طہارت ہے۔ طہارت میں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، طہارت میں یہ نہیں کہ صرف پانی نہانا، یہ نہیں، طہارت میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی چیز طہارت میں یہ ہے کہ باغسل ہونا۔ کیا؟ باغسل ہونا، یعنی پانی نہایا ہوا ہونا۔ اگر کوئی اگر ایسی بات پائی جائے جس سے غسل فرض ہوتا ہے تو اس باغسل ہونا، پانی نہایا ہوا ہونا، پہلی چیز باغسل ہونا۔ طہارت ہی میں ہے یہ سب باتیں۔ دوسری چیز باوضو ہونا۔ کیا ہے دوسری چیز طہارت میں؟ باوضو ہونا، یعنی وضو کے ساتھ ہونا، وضو کیا ہوا ہونا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جسم کا پاک ہونا۔ جسم کا پاک ہونے سے مراد کیا ہے؟ جسم پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، یعنی نجاست سے مراد پیشاب وغیرہ یا خون وغیرہ جسم پر نہ لگا ہو، تیسری چیز۔ چوتھی چیز کپڑے کا پاک ہونا۔ کیا ہے چوتھی چیز طہارت میں؟ کپڑے کا پاک ہونا۔ کپڑے کا پاک ہونے سے مراد کپڑے پر کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ آپ کو میرے ساتھ بولنا ہے، کیا کپڑے پر کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ پانچویں چیز جگہ کا پاک ہونا، یعنی جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ تو طہارت میں کتنی باتیں آ گئی؟ 5 باتیں آ گئی۔ پہلی چیز باغسل ہونا، دوسری چیز آپ کو میرے ساتھ بولنا ہے، پہلی چیز دوسری چیز باوضو ہونا، تیسری چیز بدن کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، چوتھی چیز کپڑے کا پاک ہونا، پانچویں چیز جگہ کا پاک ہونا، ٹھیک؟ تو شرائط نماز عرض کر رہا تھا، تو پہلی چیز ہے شرائط نماز میں طہارت۔ طہارت میں ہو گئی 5 باتیں۔ انشاءاللہ اور بھی شرائط نماز ہے، جیسے ستر عورت، یعنی کپڑے سے بدن کا کپڑے سے بدن کا چھپانا، بدن کو اپنے بدن کو چھپانا، یہ کیا ہے؟ ستر عورت ہے۔ جیسا ہم کپڑا پہنتے ہیں بدن کو چھپاتے ہیں، یہ ستر عورت ہے۔ اس میں اور بھی ڈیٹیلز ہے کہ مرد کے لیے کتنا ہے، عورت کے لیے کتنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ مختصر یہ یاد رکھیں کہ جہاں سے ناف ہوتا ہے وہاں سے یہ جو گھٹنے کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے، گھٹنے سمیت وہاں تک چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو۔ اگر نماز کے باہر بھی اگر آپ گھٹنا دکھائیں گے، جو بمبی کا حصہ ہے جسے ہم یہ ناف کہتے ہیں، بمبی عام زبان میں ہم بمبی جسے کہتے ہیں، ناف جسے کہتے ہیں، ناف سے اطراف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ
عام نماز کے علاوہ بھی اگر آپ دکھائیں گے مرد کو دکھانا بھی جائز نہیں ہے. یعنی اگر آپ شارٹس پہنیں گے, چڈی مطلب جسے ہم شارٹس کہتے ہیں عام زبان میں, شارٹس اگر پہنیں گے مرد کو دکھانا بھی جائز نہیں ہے. اگر دکھائے گا مرد بھی اگر اپنا گھٹنا دکھائے گا تو کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. نماز میں دکھانا تو ویسے ہی ناجائز ہے, لیکن نماز کے باہر بھی ناجائز ہے. اس کے علاوہ نماز میں پورا کپڑا پہننا, اگر سینہ کا حصہ بھی اگر دکھے گا تو نماز مقبول تحریمی ہو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے. تو دوسرا جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ ستر عورت ہے. تیسرا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, استقبال قبلہ, یعنی قبلے کی طرف چہرہ رہنا, قبلے کی طرف چہرہ اور اپنا سینہ قبلے کی طرف رخ ہونا. اور اس کے علاوہ نیت ہے, اس کے علاوہ نیت کے علاوہ وقت ہے, اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا ہے. آئیے جو میں ٹاپک میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ غسل کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کروں گا, باتیں پیش کروں گا, اس کے وہ ٹاپک آگے بڑھاتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, غور سماعت فرمائیے انشاءاللہ. ایسا نہیں کہ میں نے آپ کو سامنے بتا دیا, آپ کو مطلب سننا ہے, ایسا کانوں سے چھوڑ دینا, ایسا نہیں. جب بھی آپ پانی نہائیں گے, غسل کریں گے, آپ کو یہ باتیں یاد رکھنی ہے. اگر آپ 1 سے 2 بار کوشش کریں گے, یاد کرنے کی کوشش کریں گے, تو کیا ہوگا؟ یہ دماغ میں بیٹھ جائے گا اور زندگی بھر آپ بھولیں گے نہیں. کریں گے انشاءاللہ. تو غسل کا سنت طریقہ یہ ہے, غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ گٹوں تک دھوئے. یعنی پہلے کیا کرنا ہے غسل میں؟ پہلے نیت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے. نیت کر کے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھونا ہے. یعنی دونوں ہاتھوں کو, یہ جو حصہ ہے گٹے جسے کہتے ہیں, وہاں تک دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لینا ہے. پہلے کیا کرنا ہے غسل میں؟ نیت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے. آگے میں سوال کروں گا آپ کو انشاءاللہ, غسل کا جب طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا, کسی کو مطلب رینڈملی اٹھا کر انشاءاللہ سوال کروں گا کہ غسل میں پہلے کیا کرنا ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے. کیونکہ غور سے سوال فرمائیے, پھر بعد میں سوال کرنے کے بعد میں نے نہیں سنا, ایسا نہیں. ٹھیک, تو پہلے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ گٹوں تک دھونا ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ نیت. اس کے بعد دھو لینا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر استنجا کی جگہ دھوئے, وہاں نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو. یعنی ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے وہاں پر دھو لے, چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو. اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ناف کے نیچے دھو لیں. پہلے کیا کرنا ہے؟ نیت. کیا کرنا ہے؟ نیت. دوسری چیز گٹوں سمیت دھونا ہے. تیسری چیز ناف کے نیچے دھو لینا ہے. پہلی چیز نیت. دوسری چیز دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھو لینا ہے. تیسری چیز ناف کے نیچے دھو لینا ہے. پہلی چیز نیت, دوسری چیز دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت 3 مرتبہ دھو لے. اس کے بعد ناف کے نیچے دھو لے. 3 باتیں ہو گئی. اس کے بعد چوتھی چیز, پھر بدن پر جہاں نجاست لگی ہو وہاں دھوئے. یعنی چوتھی چیز کیا ہے؟ جہاں پر اگر نجاست لگی ہو, نجاست سے مراد اگر پیشاب وغیرہ اگر کچھ لگا ہو بدن پر تو وہ دھو لے. یا غسل فرض ہوا ہو تو جو نجاست لگتی ہے غسل فرض ہونے پر اگر کوئی وہ نجاست لگی ہو تو چوتھی چیز وہ دھو لے. پہلی چیز نیت, دوسری چیز گٹوں تک ہاتھ دھونا, تیسری چیز چوتھی چیز اگر نجاست بدن پر لگی ہو تو وہ دھو لے. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات, پھر نماز جیسا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے. ہاں اگر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 5ویں چیز نماز جیسا وضو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نماز جیسا وضو کرنا ہے. اگر آپ چوکی وغیرہ پر اگر بیٹھ کر غسل کرتے ہیں تو پیر بھی دھو لینا ہے. اگر نیچے بیٹھ کر کرتے ہیں یا پانی وہاں پر جم جاتا ہے, غسل کا پانی اگر جم جاتا ہے وہاں پر تو پیروں کو نہیں دھونا ہے, پیروں کو آخر میں دھونا ہے. لیکن اگر چوکی وغیرہ پر بیٹھتے ہیں, پانی وہاں پر جمتا نہیں, غسل خانے میں باتھ روم میں اگر پانی جمتا نہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پورا وضو کر لینا ہے, پیروں کے پیر بھی دھو لینا ہے. تو پہلی چیز نیت,
दूसरी चीज जी, तीसरी चीज, चौथी चीज जहां पर नजासत लगी हो वहां पर धो ले। पांचवी चीज नमाज जैसा वजू करे, माशाअल्लाह। छठी चीज फिर बदन पर तेल की तरह पानी चपड़े, यानी बदन पर तेल की तरह पानी मलना है, सारे बदन पर तेल की तरह पानी मलना है। हम तेल कैसे मलते हैं? तेल को लेकर ऐसा ऐसा रब करते हैं ना, रगड़ते हैं, मलते हैं। ये इस वजह से है कि अगर सर्दियों में आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा होता है कोनी का हिस्सा व्हाइट हो जाता है, होता है कि नहीं? अगर वहां पर पानी आप डालेंगे, ऐसे ही पानी डालकर अगर उठ जाएंगे तो वो हिस्सा भीगता नहीं, बराबर से अंदर पानी पहुंचता नहीं। इसकी वजह ये है कि तेल की तरह मलने की वजह ये है, जब आप तेल की तरह मलेंगे तो जो हिस्सा व्हाइट हिस्सा जो यहाँ पर होता है कोनी वगैरह पर, वो हिस्सा अच्छी तरीके से गुस्ल में धोए जाता है। तो छठी चीज क्या है? तेल की तरह सारे जिस्म पर पानी मलना, तेल की तरह सारे जिस्म पर पानी मलना। तो पहली चीज नियत, दूसरी चीज माशाअल्लाह, तीसरी चीज नाक से नीचे धोना, चौथी चीज नजासत को धोना, पांचवी चीज नमाज जैसा वजू करना, छठी चीज तेल की तरह सारे जिस्म पर पानी मलना। ठीक, याद है ना? 6 बातें हो गई। आइए 7वीं बात, फिर 3 मर्तबा दाहिने मोढ़े पर, फिर 3 मर्तबा बाएं मोढ़े पर, यानी 3 मर्तबा राइट साइड पर। पहले क्या करना है? राइट साइड पर 3 मर्तबा पानी बहाना है अच्छी तरीके से, और फिर लेफ्ट साइड पर 3 मर्तबा पानी बहाना है अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से मुराद क्या है? एक बाल की जगह भी मतलब भीगने से ना रहे, अच्छी तरीके से मुराद। अच्छी तरीके से मुराद जैसे बगल के नीचे पानी बराबर से पहुंचता नहीं, और ये जो घुटने के पीछे वाला हिस्सा होता है वहां पर पानी पहुंचता नहीं, और जो नाक के नीचे के थोड़े हिस्से होते हैं वहां पर पानी ठीक से पहुंचता नहीं, तो वहां पर अच्छी तरीके से पानी पहुंचाना है। तो क्या करना है? 7वीं बात क्या करना है हमें? 3 मर्तबा राइट साइड 3 मर्तबा पानी बहाना है, और उसके बाद लेफ्ट साइड 3 मर्तबा अच्छी तरीके से पानी बहाना है। कितने बातें हो गई? 7। कितने? पहला नियत, दूसरा घटोघट हाथ धोना, तीसरा नाक के नीचे धो लेना, चौथा जहां पर नजासत लगी हो वहां पर धो लेना, 5वां नमाज जैसा वजू करना, माशाअल्लाह। 6वां तेल की तरह पानी बहाना, माशाअल्लाह। यहाँ से आवाज आ रही है लेकिन वहां से शायद कुछ खामोश है, आवाज मतलब नहीं आ रही, ऐसा क्यों? तो 5वां 6वां तेल की तरह पानी बहाना, 7वां ये कि 3 मर्तबा राइट साइड पानी बहाना, 3 मर्तबा लेफ्ट साइड पानी बहाना अच्छी तरीके से। 7 बातें हो गई। आइए 8वीं बात, फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना। फिर क्या करना है? सर पर पानी बहाना है, सर पर और तमाम बदन पर पानी बहाना है, सर पर और तमाम बदन पर। ये अच्छी तरीके से याद रखें, गुस्ल में पानी बहाने से मुराद ये है कि जहां मतलब ये सर है, सर से लेकर पांव की जो एड़ी का जो मतलब तलवा जो होता है वहां तक एक बाल भी अगर भीगने से रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। क्या? एक बाल भी अगर भीगने से रह गया, पानी बहने से रह गया तो गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा। तो एहतियात करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर यहाँ पलक के नीचे हो गए, होठों के ऊपर पानी बहाना, इसी तरह बगल में, इसी तरह जो घुटने होते हैं घुटनों के पीछे वाला हिस्सा, इसी तरह नाक के नीचे वाला हिस्सा, ये एहतियात की चीजें हैं, मतलब बहाना जरूरी है। इसी तरह कान के अंदर के जो हिस्सा होता है, हम सर का मसाज जब करते हैं, कान के अंदर वाला हिस्सा, ये कान के पीछे वाला हिस्सा, किसी के बाल बड़े होते हैं वहां पर अच्छी तरीके से बहाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। तो 8वीं बात क्या है? सर पर 3 मर्तबा पानी बहाना, इस तरीके से कि सारा बदन भीग जाए, सारा बदन भीग जाए। ठीक, कितने बातें हो गई? 8 बातें हो गई। पहली बात नियत, दूसरी बात दोनों हाथ रट्टों समेत धो लेना,
बात एक की तरह पानी बहा, पानी चपड़ना। सातवीं बात राइट साइड 3 मरतबा पानी बहाना, लेफ्ट साइड 3 मरतबा पानी बहाना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आठवीं बात पानी बहाना, सर पर 3 मरतबा पानी बहाना, इस तरीके से कि सारा बदन पानी से मतलब बह जाए। 8 बातें हो गई। आइए 9वीं बात, फिर नहाने की जगह से अलग हो जाए और वजू करने में पाँव नहीं धोए थे तो अब धो ले। नहाने में किबला, यानी अगर 9वीं बात क्या है, अगर आप वजू करते वक्त, जैसा नमाज का वजू करना है, उस वक्त अगर आपने पैर अगर नहीं धोया तो आपको क्या करना है, तब पैर धो लेना है। अगर आपने पैर अगर आपने धो लिया तो आपका गुस्ल हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो 9वीं बात क्या है, अगर आपने पैर अगर वजू में पैर अगर नहीं धोए तो आपको क्या करना है, पैर धो लेना है, अलग अलग होकर पैर धो लेना है। एक बार आप 9 बातें आप बता दें इंशाअल्लाह, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पहली बात करना, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात जी नजासत को साफ करना, बदन पे जो नजासत है उसको साफ करना। 5वीं बात नमाज जैसा वजू करना, माशाअल्लाह। 6ठी बात जी देव की तरह पानी चपड़ना जी। उसके बाद राइट साइड की तरफ पानी बहाना जी, माशाअल्लाह। उसके बाद जी, माशाअल्लाह। उसके बाद अगर वजू में पैर नहीं धोए तो धो लेना, माशाअल्लाह। आइए उसके बाद कुछ बातें पेश करते हैं। नहाने में किबला रुख ना हो और तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले और ऐसी जगह नहाए कि कोई ना देखे, और अगर ये ना हो सके तो नाफ से घुटने तक का सत्र तो जरूरी है, और अगर इतना भी मुमकिन ना हो तो तयम्मुम करे और नहाने में किसी किस्म का कलाम ना करे, ना कोई दुआ पढ़े। यानी फरमाते हैं कि नहाते वक्त ना किबला रुख चेहरा करे ना पीठ करे। आपको किस तरीके से बैठ कर नहाना है, मतलब किस तरीके से, किबला इधर ही है ना, किबला अगर इधर है तो आपको इस तरीके इस तरफ ना चेहरा करना है ना पीठ करना है। आप किस तरीके से नहा सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने ठहरा हूं उस तरीके से बैठकर नहा सकते हैं, या आप जैसे बैठे हैं उस तरीके से आप बैठकर नहा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से इस तरफ ना आप चेहरा करेंगे ना पीठ करेंगे, ठीक। और एक बात, आपको नहाते वक्त क्या करना है, नहाते वक्त इस तरीके से नहाना है कि कोई ना देखे, कोई ना देख सके। और एक बात याद रखें कि अगर आप अकेले भी मतलब कोई ना देखे, हमाम में भी अगर नहाते हो, ऐसा नहीं कि पूरा कपड़ा बदन से जुदा कर देना है। आपको क्या करना है, कपड़ा जुदा नहीं करना है। क्या करना है, आपको कपड़ा पूरा जुदा नहीं करना है, पूरा सत्र को खोलना नहीं है। आपको क्या करना है, कम से कम आपको क्या करना है, आपको कपड़ा बांध लेना। अगर त्योबन है, अगर जिसे हम आम जबान में लुंगी जो कहते हैं, लुंगी बांधकर आपको नहाना है, ऐसी लुंगी जिस पर नजासत न लगी हो। और ये याद रखें कि ऐसी मजबूरी है कि मतलब खुले में नहा रहा है तो कम से कम जो है यहाँ से नाप से लेकर घुटने के नीचे तक कपड़ा पहनना जरूरी है। अगर इतना भी अगर मतलब मुमकिन अगर नहीं है तो क्या करेगा, तयम्मुम करेगा, लोगों के सामने मतलब ये सत्र जाहिर नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, तयम्मुम करेगा। और ये याद रखें कि नहाते वक्त ना बात करना है ना कुछ पढ़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं, आमतौर पर क्या करते हैं, नहाते वक्त पानी जब डालते हैं वो क्या करते हैं, कलमा शरीफ पढ़ते हैं। ऐसा पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपका सत्र जब जाहिर होगा, आपका जब सत्र खुला होगा, जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा तो वहां पर रहमत के फरिश्ते आएंगे, रहमत के फरिश्तों को हया आएगी। आप जब मतलब बहना होंगे, आपका जब सत्र जाहिर होगा, मतलब नहाते वक्त आपको कलमा शरीफ वगैरह, दुरूद शरीफ वगैरह नहीं पढ़ना है। क्या करना है, नहीं पढ़ना है। आपको कब पढ़ना है, जब आप नियत करने वाले हैं, नियत से पहले गुस्ल खाने के बाहर पढ़ना है। आपको क्या करना है,
تو یہ ہو گیا غسل کا طریقہ. میں پوچھوں تو بتائیں گے نا؟ جو میں نے 9 باتیں بتائیں انشاءاللہ کسی کو اگر مجموعے میں سے اٹھا کر پوچھو تو بتائیں گے انشاءاللہ. پہلا نیت کرنا، دوسرا ہاتھ دھونا، تیسرا ناف کے نیچے تک دھو لینا ہے، چوتھا نجاست لگی ہو وہاں تک دھو لینا ہے، پانچواں نماز جیسا وضو کر لینا ہے، چھٹواں رائٹ سائڈ تیل کے جیسا وضو کرنا ہے، پانی بہانا ہے، ملنا ہے، چھٹا رائٹ سائڈ 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، سر پر پانی بہانا ہے 3 مرتبہ، 9واں کیا کرنا ہے آپ بتا دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی. اور دوسرے کوئی بتائیں گے انشاءاللہ؟ آپ میں سے کوئی بچے یہاں سے جو بیٹھے ہیں کوئی بتائیں گے؟ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں بتایا بچے نے. پہلی بات میں یہ یاد رکھیں کہ ایک بار بتانے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب 100 کے 100% دماغ میں بیٹھ جائے. ایسا نہیں ہوتا. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہم بھی جب سیکھتے ہیں، ہم جب پڑھے ہیں، ہم کو جو آن لائن ہم کو امتیاز ہم سکھائے ہیں، ہم جب پڑھتے تھے ایسا نہیں کہ مطلب ایک بار حضرت نے فرما دیا کہ یہ طریقہ ہے غسل کا، ہم نے پھر حضرت آج نے پوچھا تو ہم ایسا نہیں کہ سٹ سے پٹ سے بتا دیا. ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. جب آپ 100% آپ سنیں گے تو 50% ممکن ہے 50% 60% آپ کو یاد ہوگا. آپ کو یاد 100% کب یاد ہوگا کہ آپ جب غسل کرتے جب آپ یاد کریں گے کہ بتایا تھا کہ پہلی بات نیت کرنا. جب یاد کریں گے 2-4 بار آپ اس کو دہرائیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. جب تکرار کریں گے تو یاد ہوگا. ٹھیک؟ تو ایسا شرمانا نہیں ہے کہ مطلب کہ ایک آدھ بات بھول گئی یا چوک ہو گئی. وہ تو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہوتا ہے. آئیے اور کوئی بتائے گا دوسرا کوئی؟ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 ہاتھ کٹو سمیت دھونا، نمبر 3 نجاست کے نیچے دھو لینا، نمبر 4 جہاں پہ نجاست لگی ہے اسے دھو لینا، نمبر 5 وضو کے جیسا نماز کے جیسا وضو کرنا، نمبر 6 تیل کے جیسا جسم کو لگانا، پانی کو چپڑنا، نمبر 7 رائٹ سائڈ پانی بہانا اور لیفٹ سائڈ پانی بہانا، نمبر 8 سر پر 3 بار پانی بہانا، نمبر 9 وضو میں پیر نہ دھولے تو پیر دھو لینا. اور کوئی آخری ایک شبد بتا دو، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کہ نماز غسل میں کیا بات کون سی باتیں فرض ہیں. اور کوئی آئے گا کیا؟ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اگر کوئی بتانا چاہتے ہیں تو آ جائیں انشاءاللہ، نہیں تو آگے بڑھتے ہیں کہ غسل کن باتوں سے غسل ٹوٹتا ہے اور غسل میں کیا باتیں فرض ہے، کیا باتیں کرنا ضروری ہے. کوئی بتائے گا کہ اب کوئی بتائے گا آگے کیا آگے بڑھے؟ آپ کے اوپر ہے، آپ کی مرضی. کوئی بتانا چاہ رہا ہے تو بتا دیں. جو 9 باتیں میں نے بتائی اگر کوئی بتانا چاہ رہے ہیں تو بتا دیں، نہیں تو آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو غسل میں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے تھے، ایک بار درود پاک پڑھ لیں.
सय्यिदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो गुस्ल में 3 बातें फर्ज हैं। कितनी बातें फर्ज है गुस्ल में? 3 बातें फर्ज है। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लें। गुस्ल में 3 बातें फर्ज है। कितने बातें? 3 बातें फर्ज है। तो पहली चीज, कुल्ली इस तरह के मुंह के हर पुर्जे, गोशे, होंठ से हलक की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। मसूड़े, दांत और उसकी खिड़कियां, जबान की हर करवट में हलक के किनारे तक पानी बहे। दांत में कोई चीज अटकी हो तो जब तक जरर और हर्ज न हो छुड़ाना जरूरी है। बे इसके गुस्ल ना होगा और बेगुस्ल नमाज ना होगी। तो पहली बात क्या है? कुल्ली करना। कुल्ली करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हर चीज का एक मकसद होता है। हमारे यहाँ जमा होने का मकसद इल्म दीन सीखना और सिखाना है ना, सब इसीलिए जमा है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिफ्रेश भी हो चुके हैं, चाय भी हो चुकी है। अब रही बाकी तहारत की बात, तो आपको 1 बजे वक्फा दिया जाएगा जिसमें हम लोगों को तहारत ज़रूरियात से फारिग होकर नमाज की तैयारी करनी है। तो लिहाजा उससे पहले मैं तमामी लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ी बहुत तहारत अगर आ रही हो तो उसे कंट्रोल करें। इसलिए कि हम बहुत सारे कामों में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। जब काम अहम हो तो दूसरे कामों को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो बहुत ही अहम सेशन चल रहा है गुस्ल का। जिसका गुस्ल सही होगा उसका वजू सही होगा, और जिसका वजू सही होगा उसी की नमाज दुरुस्त होगी, है ना। तो लिहाजा ऐसे सेशन में जहाँ पर बहुत ही क्रूशल मोमेंट चल रहा हो, आप इस इज्तिमा का छोड़कर तहारत खाने की तरफ आ जाए। अगर किसी को कोई दूसरी चीज़ की हाजत हो, यानी किसी का सर दुख रहा हो, किसी का पेट दुख रहा हो, तो उसके लिए भी हम मौजूद हैं। आप हमसे रब्ता करें, हम जाकर लाएंगे। इज्तिमा का छोड़कर रोड की तरफ या बाहर जाने का कतई किसी को इजाज़त नहीं है, इस बात को याद रखें। इज्तिमा का छोड़कर रोड की साइड कोई भी जाने की इजाज़त के हकदार नहीं है। आप यहाँ आए हैं, हमारी जिम्मेदारी पर हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने की मौका दें। आप अपने तौर पर कोई अलग से काम न करने जाए। माशाअल्लाह। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों कि गुस्ल में 3 बातें फर्ज हैं। पहली चीज कुल्ली करना, दूसरी चीज नाक में पानी चढ़ाना, तीसरी चीज सारे बदन पर पानी बहाना। तो पहली जो बात है कुल्ली करना, उसमें कुछ डिटेल्स हैं। वो डिटेल्स क्या है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों? कुल्ली करते वक्त ये याद रखें कि अगर दांत में अगर कुछ अटका हो, दांत में अगर मतलब मान लीजिए गोश्त वगैरह अगर कुछ अटका हो, दांत में कुछ अटका हो तो उसे निकालना जरूरी है। बगैर तकलीफ के अगर वो निकल सकता है तो मतलब उसको निकालना जरूरी है। जरर और हर्ज ना हो तो निकालना जरूरी है। अगर बगैर उसके निकाले, अगर दांत में कुछ अटका हो, बगैर उसके निकाले आपने कुल्ली कर दिया और गुस्ल आपने मुकम्मल कर दिया तो गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा। तो आपको क्या करना, अगर दांत में अगर कुछ अटका हो तो आपको उसको निकालना जरूरी है। इसी तरीके से कुल्ली इस तरीके से करना है कि जो दांत के जो खिड़कियां होती है, दांत के जो बीच के जो जगह होती है, वहां पर पानी, और मसूड़ों में होंठ के अंदर नीचे वाला हिस्सा, जबान के नीचे वाला हिस्सा, होंठ से लेकर हलक तक अच्छी तरीके से पानी बहना, पानी पहुंचना जरूरी है। अगर पानी ना पहुंचा तो गुस्ल न होगा। इसी के साथ साथ अगर आप रोजे से नहीं है तो गरारा भी करें, ठीक। तो पहली बात क्या है? कुल्ली करना। कुल्ली किस तरीके से करना है? होंठ से लेकर हलक तक पानी अच्छी तरीके से पहुंच जाए, हर मुंह के हर गोशे में, हर हिस्से में, मसूड़ों में, दांत के खिड़कियों में अच्छी तरीके से पानी पहुंच जाए। अगर कुछ अटका हो और जरर ना हो, हर्ज और जरर अगर जरर ना हो, निकालने में तकलीफ
फुल तकलीफ अगर ना होती हो, निकल आसानी अगर निकल जाता हो, गोश्त वगैरह अटका हो तो निकालना फर्ज है, जरूरी है। बगैर निकाले गुस्ल नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुल्ली दूसरी बात नाक में पानी चढ़ाना। ये याद रखें, नाक में पानी चढ़ाने से मुराद लोग क्या समझते हैं कि पानी लिए और नाक को लगाए, नाक के ऊपर लगा दिए, हो गया। ऐसा नहीं होता भाई। नाक में पानी चढ़ाने से मुराद ये है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नाक में पानी चढ़ाने से मुराद यहाँ जो नर्म हड्डी होती है, नाक की जो नर्म हड्डी होती है, वहां तक पानी पहुंच जाए। वो पानी पहुंचता कैसे है? वो पानी को पहुंचाने के लिए हाथ में पानी लेकर खींचना पड़ता है, थोड़ा सा खींचना पड़ता है तो पानी पहुंचता है। इसी के साथ साथ अगर नाक में अगर मैल है, नाक में मैल है तो मैल का निकालना भी अगर मतलब सूख गया हो, जिसे हम मैल जो कहते हैं, नाक का जो मैल होता है, अगर वो सूख गया हो, उसका निकालना जरूरी है। अगर नहीं निकालेंगे तो गुस्ल नहीं होगा। ठीक। पहली चीज क्या है? गुस्ल के फराइज में से पहली चीज कुल्ली करना। किस तरीके से कुल्ली करना? होठ से लेकर हलक तक पानी अच्छा बह जाए, पानी पहुंच जाए। पहली चीज कुल्ली करना। क्या है? कुल्ली करना। दूसरी चीज नाक में पानी चढ़ाना। नाक में पानी चढ़ाने से नर्म हड्डी तक पानी पहुंच जाए। दूसरी बात। तीसरी बात मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तीसरी बात है तमाम बदन पर पानी बह जाना। क्या है? तमाम बदन पर पानी बह जाना। तीसरी बात। बह जाने से मुराद ये याद रखें, पानी बह जाने से मुराद ये नहीं कि पानी लिया और इस तरीके से लगना चालू कर दिए, ये नहीं। पानी बहने से मुराद हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी जाना चाहिए। पानी बहने से मुराद ये है। कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा पानी लेकर ऐसा रगड़ते हैं, इससे गुस्ल नहीं होता। ना गुस्ल होता है, ना वजू करते वक्त आप इस तरीके से रगड़ेंगे तो वो वजू भी नहीं होगा। तो आपको पानी अच्छी तरीके से बहाना है। जहां सर से लेकर एड़ी के जो तलवे होते हैं, तलवे तक एक बाल के बराबर अगर जगह पानी बहने से अगर रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। 3 बातें हैं फराइज़ गुस्ल में, 3 बातें हैं। पहली बात कुल्ली करना। किस तरीके से कुल्ली करना? होठ से लेकर हलक तक पानी अच्छी तरीके से पहुंच जाए, यहाँ तक अच्छी तरीके से पानी पहुंच जाए। दूसरी बात, नाक में पानी चढ़ाना। तीसरी बात, पूरे बदन पर पानी इस तरीके से बहाना के एक बाल की नोक, बाल तो बहुत दूर की बात है, अगर बाल की नोक भी भीगने से ना रहे। 3 बातें होंगी। आइए उसके बाद बेगुस्ल क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये तो आपने जान लिया कि गुस्ल के तरीका मैंने बताया कि उसमें 9 बातें आपके सामने बताई। उसके बाद गुस्ल के फराइज में 3 बातें बताई। गुस्ल के तरीके में 9 बातें बताई, गुस्ल के फराइज में 3 बातें बताई। अब आइए इंशाअल्लाह गुस्ल बेगुस्ल क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता। जिसको नहाने की जरूरत हो उसको मस्जिद में जाना, तवाफ करना, कुरान मस्जिद को छूना, अगरचे उसका सादा हाशिया या जिल्द ही क्यों ना हो, बेछुए देखकर या ज़बानी पढ़ना या किसी आयत का लिखना या किसी ऐसी अंगूठी पहनना या छूना जिस पर हुर्फ मुक़द्दियात हो, ये सब हराम है। यानी जिसको गुस्ल की हाजत हो उसका पहली बात, अब ये पॉइंट वाइज याद रख लें तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा इंशाल्लाह। पहली बात, बेगुस्ल का क्या काम करना नाजायज और हराम है। पहली बात, मस्जिद में जाना। क्या है? पहली बात मस्जिद में जाना। क्या है पहली बात? मस्जिद में जाना। दूसरी बात, तवाफ करना, यानी खाने काबा का तवाफ करना। पहली बात मस्जिद में जाना। थोड़ा बाबा से बुलंद बोले ताकि जहन में याद हो जाए। ऐसा है कि जब आप बोलते हैं, बोलने पर क्या होता है? आप जब बोलते हैं, बोलने पर क्या होता है? बोलने पर एक तो जबान तो काम
کرتی ہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کان بھی کام کرتے ہیں. آپ جب بولیں گے، اب خالی سمجھے آپ بولنے پر یاد ہوتا ہے، بولنے پر آپ کی آواز آپ کا جب سنتے ہیں تو اب جلدی آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. آپ اپنی آواز میں جب بولیں گے تو آپ کے دماغ میں جلدی بیٹھ جائے گا. تو آپ میرے ساتھ بولیں. پہلی بات کیا کرنا ہے؟ پہلے جو بے غسل ہے اس کے لیے کیا ناجائز و حرام ہے؟ مسجد میں جانا. کیا ہے؟ مسجد میں جانا. دوسری بات طواف کرنا. کیا ہے؟ طواف کرنا. پہلی بات مسجد میں جانا. دوسری بات طواف کرنا. تیسری بات قرآن مجید کا چھونا. قرآن مجید کا چھونا. اگرچہ قرآن مجید مطلب پورا قرآن شریف نہ ہو، اگرچہ مطلب ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، چاہے تھوڑا مطلب کہیں پر پیپر پر ایک آیت ہی کیوں نہ لکھی ہو، اس کا چھونا کیا ہے؟ حرام ہے. بے غسل کو اس کا چھونا، بے غسل کو بھی چھینا جائز نہیں ہے. اسی طرح بے وضو جو ہوتے ہیں ان کو بھی چھونا جائز نہیں ہے. تو پہلی بات مسجد میں جانا، دوسری بات طواف کرنا، تیسری بات قرآن پاک کو چھونا، چوتھی بات قرآن پاک کو پڑھنا. یہ یاد رکھیں جو وضو سے نہیں ہوتے وہ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بے غسل جس کو پانی نہانے کی حاجت ہو وہ قرآن مجید کو پڑھ بھی نہیں سکتا. قرآن مجید کو پڑھ بھی نہیں سکتا. تو 4 باتیں ہو گئی. کیا ہو گیا؟ مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید کا چھونا، قرآن مجید کو پڑھنا. اس میں چھونے میں یہ بھی آ گیا کہ اگر کسی مطلب انگوٹھی پر حروف مقطعات لگے ہوں اور حروف مقطعات ہوں، یعنی جیسے یاسین ہے یا طٰہٰ ہے، حروف مطلب مقطعات جو ہوتے ہیں قرآن پاک میں، اگر وہ ایسی انگوٹھی ہے، ایسی انگوٹھی کا بھی چھونا ناجائز و حرام ہے. آگے اگر قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھی ہو تو حرج نہیں. جیسے تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، یا شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین، یا مصیبت و پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، یا ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا ایسی کوئی آیت پڑھی تو حرج نہیں، جبکہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو. بے وضو قرآن مجید کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، اور بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. ان سب کو فقہ و حدیث و تفسیر کی کتابیں کا چھونا مکروہ ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ہیں، بے غسل 4 باتیں نہیں کر سکتا. ایک مسجد میں جانا، دوسرا طواف کرنا، تیسرا قرآن مجید کو چھونا، اور چوتھا قرآن مجید کا پڑھنا. 5ویں بات بے غسل، چاہے بے غسل ہو چاہے بے وضو ہو. 5ویں بات جو فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، یعنی جیسے قانون شریعت وغیرہ جو فقہ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، ایسے کتابوں کا چھونا کیا ہے؟ مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو 5 باتیں ہو گئی. اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو قرآن کی نیت سے اگر قرآن کی نیت سے نہ پڑھا ہو، جیسے مان لیجیے مثال کے طور پر ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھا ہو، یا کسی کی فوت کا خبر سنی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یہ ہے تو قرآن کی آیت، لیکن اگر قرآن کی نیت سے نہ پڑھا ہو تو پڑھ سکتا ہے. کیا ہے؟ پڑھ سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر بے غسل ہے، کوئی کام کرنے جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ لیا تو بھی حرج نہیں. یعنی قرآن کی نیت سے قرآن نہ پڑھا ہو، اگر آیت الکرسی مصیبت کے وقت آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لیا، چاہے بے غسل ہو، پڑھ سکتا ہے. کب پڑھ سکتا ہے؟ نیت قرآن کی پڑھنے کی نہ ہو. قرآن شریف کی مطلب نیت یہ ہو کہ مصیبت کے لیے پڑھ رہا ہوں، نیت یہ ہو. قرآن شریف پڑھنے کی اگر نیت ہوگی تو پڑھنا اس کا ناجائز ہوگا، گناہ ہوگا. یہ باتیں تھی جو بے غسل نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے طرز معلوم یاد ہے نا آپ کو کیا کیا نہیں کر سکتا؟ ایک مسجد میں جانا، طواف کرنا، پڑھنا. 5واں جو ہے، 5واں جو فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں اس کو چھونا کیا ہے؟ مکروہ ہے. یہ 5 باتیں ہو گئی. آئیے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو غسل توڑنے والی چیزیں ہیں اس کے بارے میں مختصراً جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
کہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے, 12:50 ہو رہے ہیں, 5 منٹ انشاءاللہ 2 سے 5 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو کوئی سوالات ہو تو غسل کے تعلق سے کیجئے. جو غسل توڑنے والی چیزیں ہیں, میرے پیارا علیہ السلام کے پیارے دیوان ایک بار درود پاک آپ پڑھ لیجئے, جیسے میں پڑھا ہوں ویسے پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بات یاد رکھیں کہ مسئلہ بتانا مقصد ہے. ایسا نہیں اگر آپ کو میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا نہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مطلب کیسے مسئلے بیٹھ کر بتا رہے ہیں, ایسا نہیں. مسئلہ بتانا ہے, میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک, بغور سماج غسل کے مطلب توڑنے والی چیزوں کے تعلق سے اگر میں بتاؤں گا تو معلوم نہیں پڑے گا مسئلہ. ٹھیک, تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو غسل کو توڑنے والی جو چیز ہے, پہلی چیز ہے احتلام, کہ غسل کو توڑ دیتا ہے, یعنی نائٹ فال ہم جسے کہتے ہیں, اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے, اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے. پہلی چیز مسئلہ بتانا مقصد ہے, مسئلہ سیکھ لے آپ. پہلی چیز نائٹ فال سے غسل ٹوٹ جاتا ہے, غسل فرض ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز شہوت کے ساتھ منی کے نکلنے سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. دوسری چیز, اس میں کئی مسئلے ہیں, انشاءاللہ پرسنل میں پوچھ لیں تو بہتر رہے گا. اور تیسری چیز ہم بستری سے غسل ٹوٹ جاتا ہے. یہ 3 باتیں ہیں جن سے غسل ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو جیسے مان لیجیے مثال کے طور پر کوئی نجاست لگی ہو, مان لیجیے آپ راستے سے جا رہے تھے, نالی کا پانی وغیرہ آپ کو پیر کو کیا لگ گیا تو اس سے غسل نہیں ٹوٹتا, وہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. یہ 3 باتیں ہیں جو جس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے. مختصراً 3 باتیں ہیں جس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے. اور کوئی مزید آپ کو سوالات ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی سوالات ہو تو انشاءاللہ پرسنل میں کر لیجئے انشاءاللہ. آئیے میں دعوت دیتا ہوں کہ محمد ابراہیم رضوی صاحب کو کہ وہ کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. یہ محمد ابراہیم بھائی ہمارے بھارتی کے سنت دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں. آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 2 سنتیں بتائیں گے, راستہ چلنے کے آداب اور پھر پانی پینے کا جو سنت طریقہ. ٹھیک ہے, سماعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر میرے آپ کے پیارے آقا حضور سربرے کائنات فقر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس پناہ میں تحفتاً درود پاک پیش کرتے ہیں. پڑھیے سب مل کر درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ, اللہ کا شکر احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایسی بابرکت محفل میں جو کیا ہے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. ایک منقبت کے اشعار ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آئیے آج جو کیا ہے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو مائنڈ یہ رکھیے کہ ہمیں یہاں سے جو کیا ہے کچھ سیکھ کر جانا ہے. اور جو کیا ہے پہلا کام کیا کرنا ہے, ایسے بغور سماعت فرما کر جو کیا ہے یاد رکھنا ہے. اور دوسرا کام کیا ہے, اس کو جو کیا ہے جو بھی ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے. تیسرا کام, اور جو بھی سنت آداب ہم سیکھتے ہیں یہاں پر اپنے گھر میں جا کر اپنے فیملی والوں سے دوست احباب سے بھی جو کیا ہے ان سنتوں کے بارے میں بتایا کریں. یہ 3 کام کرنا ہے, یاد رکھیں. ہاں, پہلا کام کیا ہے یہاں پر بغور سماعت فرمانا ہے, یاد رکھنا ہے. اور دوسرا کام جو کیا ہے ہماری
की जो क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में हमें उसमें जो क्या है अमल में लाना है। और तीसरा काम हमारे फैमिली मेंबर्स से और हमारे दोस्त अहबाब से भी जो क्या है इन सुन्नतों के बारे में बताना है। आइए, जैसा कि हम यहाँ पर जो क्या है इस बात से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए आज मैं भी एक मौजूद लेकर आया छोटा सा, पानी पीने की सुन्नतें और आदाब। पानी तो हम पीते हैं बेरोज, है ना, तो उसके भी जो क्या है सुन्नतें और आदाब बताए हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हमें जो क्या है उन सुन्नतों के मुताबिक पानी पीना है। तो आइए वो सुन्नतें कौन कौन से हैं देखते हैं। जब भी हम पानी पी रहे हैं तो पानी को जो क्या है देख कर पीना है, ना कि बगैर देखे अगर हम वैसे ही पी लिए तो उसके अंदर कुछ हमारे लिए जो क्या नुकसानदेह चीज भी हो सकती है उसके अंदर, गिलास के अंदर। तो जो क्या है हमें पानी क्या है देख कर पीना है, और ऐसे नहीं कि जग से हम डायरेक्ट पी लें पानी, जग से डायरेक्ट पानी नहीं पीना है। अदबन जो क्या है गिलास में डालकर पानी पी ले। और पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विद करें, बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए। अगर जो क्या बिस्मिल्लाह पढ़ने से जो क्या है अगर उसमें अगर कुछ नुकसानदेह चीज भी अगर हो सकती है, अगर हम कभी गड़बड़ में भी अगर हम पी लेते हैं तो वो नुकसान जो क्या हमें नहीं पहुंचता। ये बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकतें हैं। आइए और जो क्या है पानी जो क्या है हमें बैठ कर पीना है। बैठकर पानी पीने से जो क्या है जो हमारा मैदा रहता है ना उसको जो क्या है नुकसान नहीं होता। अब देखो आप नल के पास देखे होंगे पत्थर रहते हैं, पत्थर के पास जो क्या नल के पास एक टिपका अगर जो क्या पानी खतरा जो क्या पानी गिरता है तो पत्थर कैसे काला हो जाता है या फिर बेंड हो जाता है, दब जाता है, खराब होता है ना पत्थर। ये तो हमारा मैदा तो जो क्या गोश्त का है, तो ये मैदा भी जो क्या है हमारा खराब हो सकता है। तो कैसे पानी ठहर के पीने से। अगर जब हम अदबन बैठ कर पानी पीते हैं तो जो क्या है हमारे मैदे को नुकसान नहीं होगा। ये बात आज जो क्या है डॉक्टर साइंसदान और जो क्या है आज कह रहे हैं, ये बात मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता चुके हैं। आइए, और पानी को जो क्या है हमें कैसे पीना है, 3 सांसों में पानी पीने का है हमको। ऐसे ना पिए कि ऊंट जैसे पीते हैं और कई जानवर जैसे पीते हैं, यानी कि एक बार उन्हें मुंह में डालने पर पूरा पानी पीने तक सांस नहीं लेते। तो हमें ये सुन्नत तरीका नहीं है। हमें पानी इस तरह पीना है कि 3 सांसों में पीना है। जैसे कि अभी एक गिलास में पानी ले लिए, पहले से थोड़ा सा जो क्या एक घुट पीना है, फिर इसको जो क्या है दूर करना है हमें, यानी कि हमारे जो जरासीम समझ जो कीटाणु वापस आते हैं सांस के जरिए वो गिलास में नहीं जाना, गिलास को भी जो क्या हमें दूर करना है। तो जो क्या है हमें 3 सांसों में पानी पीना है। एक सांस में एक घुट पीने के बाद गिलास को दूर करें, फिर दूसरी मर्तबा पीने के बाद जो क्या गिलास को दूर करें, फिर तीसरी सांस में जब आप कितना पानी पीना चाहते हो उतना पानी पी सकते हैं। ये रहा पानी पीने का सुन्नत तरीका। और पानी पीते वक्त जो क्या है सर को ढाके रखें, यानी कि जो क्या है खुले सर खाना पीना जो क्या है मना है। तो जो क्या है जब भी हम खाना खा रहे हैं तो टोपी या फिर दस्ती वगैरह जो क्या है कुछ तो ढाक कर पानी पिया करें। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें। पानी पी लिया में ये जो क्या है अल्लाह की नियामत है जो हमें जो क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये जो क्या अल्लाह की नियामत है तो हमें जो क्या है इसको जो क्या अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर नियामत पे जो क्या है हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़े। आइए, और जो क्या है हम चलने की 9 मुतफ़रिक़ सुन्नतें वगैरह सीखते हैं। जैसा कि अभी हम पानी पीने की सुन्नतें जो क्या है सुने, तो इसको जो क्या है हमें क्या करना है, हमें रोजमर्रा जिंदगी में हमें अमल में लाना है और अपने फैमिली मेंबर्स से और हमारे दोस्तों अहबाब से भी जो क्या है इसके बारे में बताना है। अब चलो भाई हम स्कूल में चले गए, हमारे एक दोस्त है वहां पर स्कूल में जो क्या है दोस्त है या फिर मदरसे में अगर कोई हमारे दोस्त है तो लोग खड़े रहकर अगर लोग पानी पी रहे हैं तो उनको बताना है हमें कि ऐसे नहीं भाई ऐसे पिया जाता है। पानी जो क्या बैठ कर पिए, पानी 3 सांसों में पिए, सर ढक कर पिए। ये तमाम जो क्या है उनको भी बताने की कोशिश करें। इंशाल्लाह उसको आपका भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा, जिससे मैं सुना उनको भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो आइए और एक जो क्या है सुन्नत बताते हुए आइए, और तो थोड़ा वक्त है तो उसमें जो क्या है हमें और कुछ सुन्नतें और आदाब सीखते हैं। चलने फिरने की जो क्या है सुन्नतें हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क्या है हमें हर तरीका बताया है। अगर हम जो क्या है उनके सुन्नतों के मुताबिक अगर हम हमारी जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हम यहाँ पर दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। आइए चलने और फिरने की सुन्नतें क्या है देखते हैं। पहली सुन्नत, मौका हो तो रास्ते के किनारे किनारे से चले।
जैसा कि अभी हम चल रहे हैं तो हमारे हिंदुस्तान के इंडिया के रोड लाइन्स के मुताबिक हमें जो क्या है लेफ्ट साइड से यानी कि दावे तरफ से जो क्या है एक तरफ किनारे किनारे होकर चले, ना कि बीच रोड से चले, ना ही जो क्या है गाड़ियां की सिमत जहां होती है उस तरफ से ना चले। रोड के जो क्या है एक तरफ किनारे किनारे से चलने की कोशिश करें। दूसरी सुन्नत यह है दरमियानी चाल चले, इतना तेज कि लोगों को नजरें उठे और इतना ही आहिस्ता ना कि आप लोगों को मरीज मालूम हो। ऐसे नहीं चलना है हमें कि जब हम पैदल चल रहे हैं तो इतना फास्ट भी नहीं चलना। फास्ट चलने से ये है मुराद के भागना नहीं है, आहिस्ता चलना है। भागने से जो है गिर भी सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो जो क्या है हमें भागना नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो क्या है हमें चलना है। और इतना भी आहिस्ता नहीं चलना है कि लोगों को देखे तो अरे भाई कितना बीमार बंदा है कि कितना क्या प्रॉब्लम है कि इसको, ऐसे भी मालूम ना हो। तो दरमियानी चाल यानी कि ज्यादा फास्ट भी नहीं चलना है और ना ही ज्यादा आहिस्ता भी चलना है। लफंगों की तरह गिरेबान खोलकर अकड़ते हुए हरगिज ना चले, ये अच्छी चाल नहीं है। यानी कि अब जैसे कि जो क्या है हाथ जो से ऐसे हिला लेते हुए या फिर जो क्या है कॉलर खड़ी कर को अपना गिरेबान यानी कि जो शर्ट रहता है शर्ट के गुंडिया को ऐसा हिला लेते हुए यानी कि लफंगों की तरह जो क्या है चलना, ये हम ईमान वालों का तरीका नहीं है। चलने में यह भी एहतियात करें कि जूते की आवाज पैदा ना हो। जैसा कि हमारे हजरत रियाजुद्दीन साहब जूते पहनने के सुन्नत इरादा बता रहे थे, तो जो क्या है उसमें उन्होंने वो भी बता रहे थे जूते पहनने की आवाज। उसमें ये भी सुन्नत एक है कि जब भी हम जूते पहनकर चल रहे हैं तो जब जो क्या हमें आवाज से नहीं चलना चाहिए। अब आज हजरत चलते हैं हम देखते हैं तो टक 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 आवाज आती है जूतों की, तो जो क्या इससे किसी और को डिस्टर्ब हो सकता है इस आवाज से। मेरे सरकार की ये सुन्नत है कि आहिस्ता आहिस्ता चले, स्पीड ना चले, यानी कि उसकी जूतों की आवाज ना आए या फिर चप्पल की भी आवाज है तो जो क्या है बिल्कुल आवाज नहीं आए, आहिस्ता आहिस्ता से जो क्या है चलने की कोशिश करें। राह चलते हुए परेशान नजरी यानी कि इधर उधर देखने से बचे। यानी कि अब बाजार में हम कुछ काम के लिए जाते हैं या फिर कहीं जो क्या है कुछ काम से जो क्या हमें बाहर जाना होता है, अगर हम जा रहे हैं तो जो क्या नजरें हमारे उठाकर इधर उधर देखते हुए ना चले। हमें जो क्या है नजरें नीचे करते हुए शरीफाना चाल चलना है हमें कि अब यानी कि निगाहें इधर उधर से मुराद ये है कि किसी गैर महरम पे हमारी नजर ना हो। यानी कि कोई अगर औरतें जा रही हो या फिर कुछ और भी हो तो जो क्या है हमारी नजरें उन पर नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि अदबन नीचे नजरें करते हुए, जब मैं नीचे नजरें बोल को बोले तो वो तो नीचे देखोगे तो गिर जाएंगे फिर आप, वैसे भी उतना भी नीचे नहीं जितना हमें जरूरत है कि आंख उठाकर हमको देखना जरूरी है वहां पर, तो जब भी जो क्या है हमारे नजरें उठानी चाहिए। सड़क उबूर करते हुए गाड़ियों वाली समत देखकर सड़क उबूर करें। अब आजकल बच्चे क्या करते हैं, रोड क्रॉस करने का था वहां जो क्या भागते हुए चले जाते हैं, फिर जो क्या है कुछ हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो हमें जो क्या है भागते हुए करते ही जो क्या रोड क्रॉस करनी नहीं है। सड़क उबूर करते वक्त जो क्या है हमें आहिस्ता से जो क्या है गाड़ियों वाली गाड़ी किधर से आ रही है देखो जो क्या है आहिस्ता से चलने की कोशिश करें। कोई गाड़ी आ रही हो तो बेतहाशा भाग ना पड़े, वहीं खड़े हो जाए, इसमें हिफाजत का ज्यादा इम्कान है। दौड़े पड़ने से हादसे का खतरा ज्यादा रहता है। यानी कि अगर हम अब रोड क्रॉस कर रहे हैं, अगर हम वहां से अगर भागे तो जो क्या है हमारे जो क्या है एक्सीडेंट होने का या फिर कुछ हादसा होने का, हमें जो क्या है नुकसान पहुंचने का जो क्या है कुछ अंदेशा हो सकता है। तो हमें जो क्या है भागना नहीं है रोड क्रॉस करते वक्त। रास्ते में दो औरतें खड़ी हो, रास्ते में दो औरतें खड़ी हो या जा रही हो तो उनके बीच से ना गुजरे। अभी देखिए ये भी बताया जा रहा है अगर कोई दो लेडीज हैं रोड पे चल रहे हैं या फिर हम भी जा रहे हैं तो दो औरतों के बीच में से जो क्या है हमें गुजरना मना है। तो जो क्या है ऐसे ना करें, उनके जो क्या है दूसरी साइड से चले जाएं, ताकि उन दोनों औरतों के बीच में से जो क्या है गुजरना अच्छी बात नहीं है, ऐसे ना करें। फुदकते हुए बाजारी अंदाज में ना चले बल्कि नीची नजरी के लिए पुरवकार तरीके पर चले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ पर सुन्नतों में ये बताया जा रहा है कि फुदकते हुए यानी कि दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए, पुकारते हुए जो क्या है किसी और को हमारे से जो तकलीफ हो सकती हो उस तरह जो क्या है
चलने से जो क्या है बचे और नजरें नीचे करते हुए पूर्वकार तरीके से जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो इस तरीका पर जो क्या है चलने की पूरी कोशिश करें। ऐ हमारे प्यारे अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के मुताबिक दरमियानी और तकब्बुर से बिल्कुल पाक चाल चलने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें रास्ते के एक तरफ इधर उधर जाके ताके बगैर सर झुकाकर शरीफाना चाल चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन जाए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज में आपके सामने पानी पीने की सुन्नतें और रास्ता चलने की सुन्नतें आपके सामने पेश कर रहे थे, आपको बता रहे थे। माशाल्लाह बड़ी प्यारे अंदाज में बहुत प्यारी बातें बताई इन्होंने कि जब चलना है नजरें नीची रखकर चलना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में चलना भी है, जब नजरें नीची रखकर चलना है। ये याद रखें मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तो सारा वजूद बहकता है। तो हमें क्या करना है, पहले नजरों की हिफाजत करना है, तो दिल नहीं बहकेगा। दिल अगर नहीं बहकेगा तो वजूद खराब नहीं होगा। तो क्या करना है, नजरों की हिफाजत करना है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, कुछ ही देर में इंशाल्लाह मोहम्मद ज़हीर भाई आएंगे इंशाल्लाह, वो आपको शायद उसके बाद ब्रेक होगा शायद। उससे पहले नाते पाक पढ़ने के लिए मैं दावत देता हूँ हमारे बहुत ही होनहार मुबल्लिग, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद हुसैनुद्दीन रज़वी नूरी कादरी साहब, जो ज़हीराबाद से तशरीफ लाए हैं। बहुत ही प्यारे अंदाज में नात पढ़ते हैं। आप समाअत फरमाइए। नाते पाक पढ़ने का फायदा ये है, नाते पाक सुनने का फायदा क्या जानते हैं? अब फिर मैं आपके सामने बता देता हूँ, आप शायद जानते भी होंगे, फिर भी मैं आपके सामने बता देता हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, जो नाते पाक अच्छे नातखा से नाते पाक सुनते हैं, तो नाते पाक पढ़ने से और नाते पाक सुनने से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इश्क होता है उसमें इजाफा होता है। क्या होता है? इश्क में इजाफा होता है। इश्क में इश्क का जो जज्बा होता है वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो आइए इसी के लिए मैं दावत देता हूँ कि मोहम्मद हुसैनुद्दीन रज़वी कादरी नूरी साहब को, जो नाते पाक पढ़कर हमारे दिलों को मुनव्वर और मुजर्रा फरमाए। उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह उनका साथ देंगे। उम्मीद तो बहुत कामिल उम्मीद है। माशाल्लाह आपके चमकते हुए चेहरे बता रहे हैं कि आप साथ देंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए नात के चंद अशआर समाअत करने से पहले हम और आप मिलकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चार साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के लोगोसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत, यानी जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद और सलाम का हदिया नजराना पेश करें। मैं जिस तरीके से पढ़ा हूँ उससे बेहतरीन अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी रज़वी साहब का लिखा हुआ कलाम है। तो इस उम्मीद के साथ पढ़ना हो कि इंशाल्लाह सब साथ देंगे। इंशाल्लाह सब साथ देंगे ना इंशाल्लाह। दिल की दुनिया को सजाओ आका, दिल की दुनिया को सजाओ आका, अपनी उल्फत में जिलाओ आका, अपनी उल्फत में जिलाओ आका, दिल की दुनिया को सजाओ आका,
से शब शौके भी